Hello students and a warm welcome to Super Grad Cat YouTube channel and yet another update we have received from IIT Bombay. उन्होंने भी अपने PI calls जो हैं out कर दिए हैं. So जिन भी students ने IIT Bombay में apply किया था, please अपने mails check करो whether you have received the PI call or not. In this particular video, we'll be discussing the important dates कि आपका PI कौन से डेट पे होने वाला है, प्लस लास्ट ईयर के हिसाब से, लास्ट ईयर के आरटीआई डेटा के हिसाब से आई विल बी टेलिंग यू कि कितना मैक्सिमम, मिनिमम और एवरेज कट ऑफ था कैट का. जिन बच्चों को पीआई के लिए कॉल्स आए उसमें से कितने बच्चे सिलेक्ट हुए, वर्क एक्सपीरियंस के हिसाब से कितने बच्चों को शॉर्टलिस्ट किया गया, कितने स्टूडेंट्स को शॉर्टलिस्ट किया गया. सो ऑल दैट डेटा वी विल बी डिस्कसिंग सो दैट यू गेट एन आइडिया. बट उससे पहले इफ यू आर वाचिंग दिस वीडियो एंड इफ यू हैव अप्लाइड फॉर आईआईटी बॉम्बे, प्लीज अगर आपने कैट 2024 दिया है सो कमेंट डाउन योर परसेंटाइल so that we also have a better understanding whether you have received a call or not. अगर आपको कॉल आया है तो you can simply type yes and you can also mention your CAT 2024 percentile. And now without wasting any more time, let's get started. So if we look at the cutoffs as per the RTI data जो 2024 as in जिन्होंने CAT 2023 में लिखा था, तो अगर हम CAT percentile की बात करें overall for general candidates and for male, so the maximum went around 99.98 and for female it went around 99.94. If we talk about OBC तो 99.93 था and females में it was 99.09. SC में it was 99.34, ST में 99.29 and ST में the maximum cutoff went 98.61 and 94.86 in case of female. Sectional wise cutoffs भी यहाँ पे दिए हुए हैं कि कितना maximum sectional cutoff गया, जिनके basis पे the students received the PI calls from IIT Bombay. Next, let us understand what was the average cutoff also. तो general candidates की अगर मैं बात करूँ, for the male 98.96 was the average, 96.62 was in case of females general candidates. OBC की बात करूँ male तो 97.66 था, 93.23 in case of if you are a female and if you are an OBC candidate. SC के केस में it was 92.99 something, 82.07 was in the case of females. ST में 93.91 in case of male and female में 81.37. So these are the average cutoffs. Again sectional wise यहाँ पे mentioned है. You can pause the screen, you can take the screenshot and then you will have a better understanding कि पिछले साल के हिसाब से किन किन बच्चों को, किन किन स्टूडेंट्स को कितने परसेंटाइल पे जो है कॉल आया था फ्रॉम आईआईटी बॉम्बे. नेक्स्ट लेट अस अंडरस्टैंड सबसे लोएस्ट कितना गया कट ऑफ मिनिमम. तो इफ यू टॉक अबाउट जनरल कैंडिडेट्स तो 97.34 था इन केस ऑफ मेल. फीमेल में 64.91 गया है सबसे मिनिमम. ओबीसी में 89.1 एंड फीमेल्स में 76.77. एससी में 76.1 गया एंड एससी फीमेल में 64.42, एसटी में 90.36 एंड ST female में 64.57. So this is the RTI data that we have over here. Next, how many students actually applied for IIT Bombay? So ये again पिछले साल का डेटा है हमारे पास. So general candidates की अगर मैं बात करूँ and male especially, so 1584 students applied and females में 567 and transgender यहाँ पे एक है. तो total 2152 स्टूडेंट्स ने जनरल कैटेगरी में से अप्लाई किया था. ओबीसी में ये नंबर 639 है, एससी में 580 है एंड एसटी में ओनली मेल कैंडिडेट्स अप्लाइड सो इट इज 126. नेक्स्ट इफ यू लुक कि हाउ मेनी वर शॉर्टलिस्टेड, सो जितने बच्चों ने अप्लाई किया उसमें से शॉर्टलिस्ट कितने हुए पीआई वाले राउंड के लिए, एज इन जो पर्सनल इंटरव्यू 2024 में हुआ था आईआईटी बॉम्बे का. सो मेल में द नंबर इज 775. So if you check over here, तो 1584 applicants में से 775 लोग जो हैं शॉर्टलिस्ट हुए. So almost आधा हो गया ये नंबर. Again 484 females were shortlisted. So total 1259 applicants जो थे वो शॉर्टलिस्ट हुए पीआई के लिए. Again यहाँ से हम फिर कंपेयर करेंगे, 2152 एप्लीकेशंस थे
और उसमें से सिर्फ 1200 बच्चे जनरल कैटेगरी के जो हैं वो शॉर्टलिस्ट हुए, दैट इज 1259। ओबीसी में 287 शॉर्टलिस्ट हुए, एससी में 256 शॉर्टलिस्ट हुए एंड एसटी में apparently only 24 were selected in the PI round. Next, when we go ahead, total admission offers, final admission offers कितने बच्चों को मिला? Let us understand that also. Again ये last year का data है. So if we talk about the unreserved category male, तो 51 offers were made. Female में सिर्फ 5 offers थे, तो 57 total unreserved category में जो थे वो offer किए गए admissions. OBC में 32, again female 8, so total 40. EWS में the total went to 15. SC में the total went to 23, ST category के लिए the total went to 11 and PWD के लिए it went 6. So total 152 candidates were apparently shortlisted, as in were selected finally, were offered admission finally to IIT Bombay. So this is the RTI data. Next, work experience के हिसाब से भी देख लेते हैं, because we have heard this thing कि IITs में मेजरली वर्क एक्स कैंडिडेट्स भी होते हैं. सो अगर मैं कहूँ कि कितने बच्चों को पीआई के लिए कॉल आया, कितने कैंडिडेट्स को पीआई के लिए कॉल आया, तो फ्रेशर्स वर 486. सो इट इज अ गुड नंबर कि 486 फ्रेशर्स को पीआई के लिए कॉल आया. जिनका 1 से 12 मंथ्स का एक्सपीरियंस था, दो स्टूडेंट्स वर 204. 12 टू 24 मंथ्स का एक्सपीरियंस जिनका था, दो स्टूडेंट्स वर 530. 24 टू 36 मंथ्स वाले थे 476 एंड 36 प्लस मंथ्स का जिनका एक्सपीरियंस था 130 कैंडिडेट्स वर ऑफ सच कैटेगरी. नेक्स्ट लेट अस अंडरस्टैंड कि इस साल का एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है फॉर 2025 टू 2027. आई एम श्योर जिन भी स्टूडेंट्स ने फॉर्म फिल किया है आईआईटी बॉम्बे का और उनको जो है पीआई के लिए कॉल आया है, सो दे हैव मेट दिस क्राइटेरिया, तभी आपको जो है कॉल आया है. एज इन 60% प्लस मार्क्स आपके बैचलर्स डिग्री में होने चाहिए. 55 है इन द केस ऑफ एससी, एसटी एंड पीडब्ल्यूडी. या तो अगर आपको मार्क्स परसेंट में नहीं मिलते हैं पर सीजीपी या सीपीआई करके इसमें मिलते हैं, तो 6.5 आपका होना चाहिए. दैट इज फॉर अनरिजर्व कैटेगरी एंड फॉर रिजर्व कैटेगरी दैट इज 6 फॉर एससी, एसटी एंड पीडब्ल्यूडी. एज इन अगेन ऑन अ 10 पॉइंटर स्केल, अगर आपकी जो ग्रेजुएशन के मार्क्स हैं 10 पॉइंटर स्केल पे होने चाहिए, तो आपका 6.5 तो होना ही चाहिए मिनिमम. नेक्स्ट व्हेन वी टॉक फाइनल ईयर स्टूडेंट्स कैन अप्लाई. सो ऑफ कोर्स अगर आप फाइनल ईयर में हो तभी आपने अप्लाई किया होगा. दैट क्राइटेरिया वी नो. वैलिड कैट 2024 स्कोर रिक्वायर्ड. अगेन you should be recognized by UGC, AICTE or reputed foreign university. Next, let us understand what is the selection process now. तो again IIT Bombay का as we all know 2-phase selection process है. अभी तक उन्होंने वेबसाइट पे अपडेट नहीं किया है कि कितना परसेंट वो वेटेज दे रहे हैं किस चीज को, बी इट फर्स्ट शॉर्टलिस्टिंग क्राइटेरिया और फाइनल. So a basic gist that they have given is based on CAT 2024 score, your academics, your work experience and other criteria, you have been shortlisted for PI. Next, only eligible candidates as per the criteria A will be shortlisted. So उनके कुछ academic disciplines भी उन्होंने लिखे हुए हैं, वहां पे आप चेक कर सकते हो, तो आपको समझ में आ जाएगा कि किस academic discipline को वो लोग कितना score दे रहे हैं. Next, phase 2, if we talk about the final selection. So your final selection obviously will be based on your CAT 2024 score, your academic performance, your work experience and your personal interview performance. Again, IIT Bombay does not have any VAT or GD, so directly personal interview ही है जैसे IIT Delhi में है. तो same process यहाँ पे भी again वेटेजेस अभी तक असाइन नहीं किए उन्होंने कि कितना वेटेज कैट को दे रहे हैं, कितना पीआई को दे रहे हैं, कितना एकेडमिक परफॉर्मेंस को दे रहे हैं, कितना वर्क एक्सपीरियंस को दे रहे हैं. सो एज एंड व्हेन दे अपडेट आई विल डेफिनेटली कम अप विद अ डिटेल्ड सिलेक्शन क्राइटेरिया वीडियो एज वेल. Okay, now what are the important dates that we should keep in mind? Again, आपका ऑनलाइन एप्लीकेशन तो 1 जनवरी से ही एक्टिव हो गया था एंड 31 जनवरी वाज द लास्ट डेट. पर्सनल इंटरव्यू का जो शॉर्टलिस्ट है वो 13 फरवरी यानी कि आज आ चुका है ऑलरेडी.
पर्सनल इंटरव्यूज जो हैं वो ऑफलाइन होंगे। अगेन इट विल बी हैपनिंग इन द आईआईटी बॉम्बे कैंपस। तो जिन भी स्टूडेंट्स को मेल आया है, यू सिंपली नीड टू चेक योर मेल। आपको डैशबोर्ड में जाके लॉग इन करना है और आपको अपने इंटरव्यू के स्लॉट्स और जो भी रिक्वायर्ड चीजें उन्होंने मांगी हैं, एज इन इट कुड बी डॉक्यूमेंट अपलोडिंग और एनीथिंग, वो सारी चीजें आपको कंप्लीट करनी है। नाउ हियर पर्सनल इंटरव्यूज विल बी हैपनिंग बिटवीन 6th of March to 9th of March। तो आप प्लीज अपना जो इंटरव्यू स्लॉट है वो चेक कर लेना कि आपको कौन सा स्लॉट मिला है, बिकॉज द इंटरव्यू विल बी हैपनिंग from 6th to 9th of March। So that is what, and they have mentioned it will be offline। Final list of selected candidates to be declared। So we can expect कि वो around May में या last week of April में maybe they will be coming out with the final shortlist also। Okay, students, so that was it from my side. And now it is time to prep up because IIT Bombay again, जिन भी students को interview के लिए call आया है, कोई छोटी बात नहीं है। It is now a make or break situation, and if you want to understand the interview experiences कि किस तरीके के questions पूछे जाते हैं, then don't forget to join the Telegram channel because regularly we are putting some interview experiences of top colleges, what kind of questions you can expect, किस तरीके के ethical situations आपको डाला जा सकता है during PI। So for all those things, make sure you join the Telegram channel। I'm putting the link in the first comment। ऑल्सो डू फॉलो अस ऑन इंस्टाग्राम एज वेल, ताकि आप कोई भी अपडेट, कोई भी चीज, कोई भी स्कूल इन्फॉर्मेशन या एग्जाम रिलेटेड इन्फॉर्मेशन मिस आउट ना करो। प्लस वी डू हैव अ कम्युनिटी एज वेल फॉर यू गाइज, दैट इज कैट सेट गो। उसका लिंक भी डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। इफ यू वांट टू नो एनीथिंग अबाउट एनी डी स्कूल, एनी एग्जाम, the mentors or the alumni, everything, everyone would be there active and would respond to you accordingly, would share their experiences as well। And if you're watching this video for the very first time, to subscribe kiye bagair mat jana। And for more such updates and for more such informative content, stay tuned on Super Grads Cat YouTube channel।